لاہور میں بادل خوب برسے 10 گھنٹوں میں 251 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ نکاسیاب کے لیے وزیر ہاؤسنگ کمشنر ایم ڈی واسا سمیت دیگر آفیسر فیلڈ میں متحرک رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ لاہور شہر میں بارش 10 گھنٹوں میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر بھر کے درجن سے زائد علاقوں میں 200 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس سے قبل رواں سال لاہور میں زیادہ سے زیادہ 256 ملی میٹر بارش 26 جون کو ہوئی۔ گزشتہ 30 سال میں شہر میں اپنے کم وقت میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی۔ شہر میں صبح سے اب تک بارش کے 2 سپیل برس چکے ہیں۔ پہلا سپیل صبح 3:55 سے شروع ہو کر 8:50 تک برستا رہا۔ دوسرا سپیل 9:20 سے 1:35 تک جاری رہا۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 291 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 145، ایئرپورٹ 127، گلبرگ میں 208 اور لکشمی چوک میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اپر مال میں 192، مغل پورہ میں 215، تاج پورہ میں 249، نشتر ٹاؤن میں 277 اور چوک ناخدا میں 205 ملی میٹر بارش برسی۔ پانی والا تالاب میں 268، فروخ آباد میں 237، گلشن راوی میں 268 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اسی طرح علامہ اقبال ٹاؤن میں 232، سمن آباد میں 178، جوہر ٹاؤن میں 260 اور کرتبہ چوک میں 270 ملی میٹر بارش پڑی۔ وزیر ہاؤسنگ اظفر علی ناصر نے ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ لکشمی چوک، کلمہ چوک انڈر پاس سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے نکاسیاب آپریشن پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ وزیر ہاؤسنگ نے شہر کو جلد کلیئر کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر محمد علی رندھاوا نے بھی لکشمی چوک اور ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ لاہور نیوز سے گفتگو میں کمشنر نے کہا کہ عید کے بعد بھی 65 کلومیٹر ڈرینز کی ڈی سیلٹنگ کرائی ہے۔ صبح 4 بجے سے تمام ادارے اور محکمے فیلڈ میں ہیں۔ تمام علاقوں میں نکاسیاب سسٹم مکمل فعال ہیں۔ سب سے زیادہ جو بارش ہے اس وقت لکشمی چوک کے پوائنٹ پہ ہمیں میئر کی ہے۔ تقریباً 236 ملی میٹر بارش اس وقت ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے واسا کی ٹیمیں اور ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ صبح 4 بجے سے آن گراؤنڈ ہے، فیلڈ پہ کام کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے ایم ڈی واسا غفران احمد کے ہمراہ مختلف انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسیاب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایات دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نشیبی علاقے تو ڈوب گئے، پوش علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ نظام زندگی مفلوج ہو گیا، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ اندرونی شہر میں رنگ محل، گمٹی بازار، بھاٹی گیٹ اور دہلی دروازے کے علاقوں میں 2 فٹ سے زائد پانی جمع ہو گیا۔ کئی دکانوں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حاجی کیمپ بورڈ والا چوک پر بارشی پانی کا بسیرا رہا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جانے والے راستے پر بھی بارشی پانی نے قبضہ جمائے رکھا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کے بیرل کی چھت پر بارشی پانی جمع ہو گیا۔ گلبرگ جیسے پوش علاقے کی سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرتی رہیں۔ لبرٹی مارکیٹ، ہالی روڈ، علی زیب روڈ، نور جہاں روڈ، حسین چوک، ایم ایم عالم روڈ اور قذافی اسٹیڈیم میں بھی بارش کا پانی موجیں مارتا رہا۔ سمن آباد مین مارکیٹ میں بھی حد نگاہ تک پانی ہی پانی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وقفے وقفے سے تیز بارش واسا اور دیگر اداروں کے نکاسی آپ کے دعوے بھی بہا کر لے گئی۔ پانی کے نکاس کے لیے بنا واسا کا شاد باغ ڈسپوزل اسٹیشن بھی ڈوب گیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن کی مشینری میں پانی جمع ہونے سے پمپ بند ہو گئے۔ شمالی لاہور کے کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ شدید بارش اور راوی سائفن سے آنے والے پانی سے لاہور کینال اوور فلو ہو گئی اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ واسا کی مرکزی ڈرینیں تیز بارش کو برداشت نہ کر سکیں۔ لاہور کی مرکزی کھارک ڈرین اوور فلو ہو گئی۔ گلشن راوی پی این ٹی کالونی میں نالا بھرنے سے پانی نے سڑکوں پر بسیرا کر لیا۔ بروقت نکاسیاب نہ ہونے سے ہر چیز برباد ہو گئی۔ واسا کے ڈرینوں کی ڈی سیلٹنگ کے دعوے بارش میں بہہ گئے۔ لاہور کی مرکزی کھاڑک ڈرین گندگی سے بھری ہونے کی وجہ سے اوور فلو ہو گئی۔ نالے کا پانی اوور فلو ہو کر سڑک پر آن پہنچا اور ڈرین ٹوٹ گئی۔ واسا کی جانب سے ڈی سیلٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے کھاڑک ڈرین میں گندگی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ واسا کا علامہ اقبال ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ جعلی رپورٹس انتظامیہ کو پیش کرتا رہا۔ گزشتہ 6 ماہ سے ڈرین کی صفائی ہی نہ کی گئی۔ سیوریج کا پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ اقبال ٹاؤن کے نیلم بلاک، گلشن بلاک، رچنا بلاک گندے پانی سے بھر گئے۔ ادھر گلشن راوی پی این ٹی کالونی میں نالے بھرنے سے قریبی آبادیاں بھی ڈوب گئیں۔ 26 جون کو ہونے والی بارش میں بھی گلشن راوی کینٹ ڈرین اوور فلو ہونے سے دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت دیوار بنائی تھی جو پھر بہہ گئی۔ علاقہ مکین بارہا محکموں کو شکایت کرتے رہے مگر افسران کوتاہی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔
तूफानी बारिश से शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश का पानी जमा होने से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की जानिब जाने वाले रास्ते बंद रहे। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी गेट के बाहर पानी जमा होने से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लाहौर में वक्फे वक्फे से होने वाली तूफानी बारिश नकासी आब के दावे भी बहा ले गई। बागों का शहर वीनस का मंजर पेश करता रहा। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पानी ही पानी जमा हो गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दाखिली रास्ता बंद हो गया। बारिश के पानी ने लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर भी डेरे डाले रखे। बारिश का पानी जमा होने से वकला और साइलिन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा का कोई अहलकार मौजूद न था, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में तूफानी बारिश ने शहर के बड़े सरकारी हस्पतालों में भी पानी ही पानी कर दिया। हस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर वार्ड्स के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, मेयो और जिना अस्पताल के कई वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बारिशी पानी मौजे मारने लगा। प्लास्टिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी के शोबों में जेरे इलाज मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल करना पड़ा। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले को भी मुश्किलात का सामना रहा। नर्सिंग हॉस्टल में भी पानी दाखिल होने से शदीद मसाइल पैदा हुए। अस्पतालों के गोदाम और दीगर शोबे भी मुतासिर हुए। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों के साथ उनके तीमारदार भी खार हो गए। अस्पताल का अमला अपनी मदद आप के तहत बारिशी पानी का निकास करता रहा। बारिश के बायस अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर अमले की हाजिरी भी कम रही। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का शदीद बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का 5 घंटे तक हंगामी दौरा। मोहसिन नकवी सरकारी मसरूफियात तर्क करके बगैर प्रोटोकॉल सूरत हाल का जायजा लेते रहे। बाज़ जगह इंतज़ामिया की गफलत पर वज़ीर-ए-आला बरहम हो गए। वज़ीर-ए-आला के अहकाम और दौरों के बायस इंतज़ामी अफसरान भी इन एक्शन रहे। मूसलाधार बारिश, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी खूब एक्शन में दिखाई दिया। निगरान वज़ीर आला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम, गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक, अंडरपास, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड और करतबा चौक में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। हरबंसपुरा, अंडरपास, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, यतीम खाना चौक और इलामा इकबाल टाउन में भी सूरत हाल देखी और इंतजामिया को मौके पर ही हिदायत देते रहे। मोहसिन नकवी ने गार्डन टाउन, गुलबर्ग और CBD मेन बुलेवार्ड, अंडरपास का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर आला ने गुलबर्ग में पंपिंग स्टेशन का भी मुआयना किया। कलमा चौक से लिबर्टी की जानिब अंडरपास में पानी की निकासी के काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। CBD मेन बुलेवार्ड में पानी की निकासी का काम CBD से वापस लेने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि चंद घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया और वासा को मुतहरिक कर दिया है। शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। रिकॉर्ड बारिश है और इतनी बारिश किसी के लिए, सबके घर डूबे हुए इस टाइम पे, बट मैक्सिमम पानी निकल गया है। उन आबादियों में भी डेफिनेटली टीमें पहुंच रही हैं। मेन था कि जो मेन रोड्स हैं, मेन अंडरपासेज हैं, वो क्लियर हो सारे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हरबंसपुरा अंडरपास में पानी की जल्द निकासी के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हरबंसपुरा अंडरपास को क्लियर किया जाए। सारे मिनिस्टर्स और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन सारी, सेक्रेटरी हाउसिंग, सारे लोग मेरे ख्याल है सुबह से ही, रात गए से बल्कि सड़कों पे हैं और एक एक जगह को इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी जितना जल्दी निकाल सकते हैं वो निकालें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने उर्दू बाजार के सामने सड़क से और इस्लामपुरा में खड़े पानी की निकासी के लिए भी हिदायत दी। इस्लामपुरा में दुकानदारों और रिहायशियों से मुलाकात की। इस्लामपुरा में शहरियों ने निकासी आप के काम में सुस्त रवि की शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काम को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। बादल बरसाने वाले 2 सिस्टम्स के इश्तराक के बाद शदीद बारिशें, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। 8 से 10 जुलाई के दरमियान दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। मगरब से आने वाली हवाओं के साथ बहिरा अरब से उठने वाली हवाओं के इश्तराक के बाइस मुल्क के बेशतर इलाके शदीद बारिशों की लपेट में हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कभी कभार पैदा होने वाली ऐसी सूरत हाल के बाइस मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा।
दूसरी तरफ 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के कैचमेंट एरियाज में भी शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस इनसे मुल्हिका सैलाबी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। इन हालात में शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। तूफानी बारिश ने लेस्को के तरसीली निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया। लेस्को के 170 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में 16 घंटे से ज़ायद बिजली बंद रही। तफसीलात के मुताबिक बारिश के बाद लेस्को के बिजली तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। लेस्को के दर्जनों खंभे गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिजली के पोल गिरने से लेस्को की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें मुतासर हुई। भट्टा चौक, शालीमार, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, मैकलोर रोड, लक्ष्मी चौक, बेदिया रोड, कैंट और दीगर इलाकों में बिजली बंद रही। बिजली बंदर से पानी की सप्लाई भी मुतासर हुई। शहरियों को अजियत का सामना रहा। बारिश रुके कई घंटे बीत गए हैं। पहले भारी स्पेल ने मुतालिका इदारों के इंतजामात के पोल खोल दिए। अब लालपुर चौक मोहम्मदपुरा में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर हैं। कहते हैं मुतालिका इदारे टस से मस नहीं हुए, मजबूरन वाटर पंप लाने पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हमजा से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि बारिश रुके कई घंटे गुजर गए हैं। पहले भारी स्पेल ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल खोला। अब लालपुर चौक मोहम्मदपुरा में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुतल्लिका इदारे टस से मस नहीं हुए हैं, मजबूरन वाटर पंप लाने पड़े हैं। बारिश रुके कई घंटे बीत गए। पहले भारी स्पेल ने मुतल्लिका इदारों के इंतजामात के पोल खोल दिए। लालपुर चौक मोहम्मदपुरा में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इसी पर बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल पुल मोहम्मदपुरा में, और ये वो सड़क है जो कि मेन शाहराह है। मेरे अकब में जो है वो मेन कनाल रोड है। और अगर मैं आपको इस वक्त सूरत हाल बताऊँ तो ये वो बारिश है जो आज हुई, जिसकी जो उंदिया है वो कई दिनों से दिया जा रहा था। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर मेरे अकब में जो आप शहरी देख रहे हैं, ये अपने घरों तक जाने के लिए जो है वो 4-4 फुट पानी में से गुजर कर जा रहे हैं। जबकि शहरियों का ये कहना है कि जो घर के अंदर है वो घर के अंदर कैद है, और जो घर के बाहर है वो घर के बाहर कैद है। जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका किसी सूरत में यहाँ पर कोई आमदोरफ्त नहीं है। जबकि जो निगरान वजीर आला है उनके भी जो चक्कर है वो यहाँ पर लगते रहे, लेकिन फिर भी निकासी आप के लिए कोई भी इदारा यहाँ पर नहीं पहुँचा। जबकि जो शहरी हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर वाटर पंप्स लगाए हुए हैं 2, और वो यहाँ से पानी जो है वो निकाल रहे हैं। उसके अलावा शहरियों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हम मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो जा चुके हैं इदारों की तरफ, लेकिन इदारों का जो है वो किसी भी किस्म का कोई यहाँ पर आमदोरफ्त नहीं रही। ना इदारे ने जो है यहाँ पर पहुँच कर पूछा कि क्या मसले हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि पानी जो है ये इसके लिए आपने वासा से रब्ता किया है? करो यार जी भाईजान, आप बताइएगा वासा से? जी मुतलका इदारे से हमने बात की है, ना वो इंतज़ामिया अभी तक आए हैं, ना जायजा लिया इलाके का। तो ये सारी दुकानें डूब गई हैं, डिस्पेंसरी वगैरह सब, बाजार में जितना पानी है 3 से 4 फुट पानी घरों में दाखिल हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो पानी जनरेटर लगे हुए आप लोगों ने खुद लगाए कि वासा के? नहीं, हमने खुद ही लगाए हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि 3 से 4 फुट जो है वो गली के अंदर पानी है, और जो ये गली है यहाँ पर घर तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जो भी शहरी हैं वो दूसरी गलियाँ जो है वो ढूंढने पर मजबूर हैं, और ये गली को जो है वो बाकायदा जो रिहायशी है उनकी मदद, अपनी मदद आपके तहत रस्सी लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी को भी जो है वो दुश्वारी का सामना ना हो। जबकि अगर यहाँ से मोटरसाइकिल या यहाँ से रिक्शा तक गुजरने का जो है वो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी तकरीबन 4-4 फुट जो है वो पानी मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद, आपने आगाह किया। बारिश बंद हुए घंटों गुजर गए। फतेहगढ़ मेन बाजार से पानी की निकासी ना की जा सकी। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। राहगीरों का गुजरना महाल हो गया है। अहले इलाका का कहना है कि वासा को इतला भी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सूरत हाल क्या है ये बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फतेहगढ़ मेन रोड के ऊपर मौजूद हूँ। बारिश बंद हुए
कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं की जा सकी, जो कि वासा की कारकर्दगी कितनी अच्छी है वो भी दिखाता है। आपको यहाँ पे मेरे कैमरामैन दिखा सकेंगे जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जो है वो पानी जो है वो तालाब के मनाजिर पेश कर रहा है। ये मोहल्ला और सड़क के ऊपर जो शहरी गुजर रहे हैं, राहगीर हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि वासा से रब्ता किया है? वासा ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ 2-3 दिन तक इस तरह ही रहेगा ਇੱਥੇ। जी बिल्कुल, वासा को रब्ता किया गया लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं की गई। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ से गुजर रहे थे तो किस हद तक मुश्किल था इतने गहरे पानी में गुजरना? बेटा हमें तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जब ये बारिश होती है ख़ास तौर पे 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पे पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। नमाजी हज़रात मसाजिद में जाने के लिए परेशान होते हैं और ये तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी देखें, मैं एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, इधर जाएं फिर भी पानी, इधर जाएं फिर भी पानी और घुटनों घुटनों पानी। बाइक्स बंद हो रही हैं, लेडीज़ गिर रही हैं और बेपनाह मसाइल हैं। इधर तो हमें जीना मुश्किल हुआ है। प्लीज़ मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वासा से कहें उनको काइंडली बहुत बहुत जल्दी यहाँ पे ये पानी निकलवाने की कोशिश की जाए। बहुत जी बिल्कुल, इलाका मकीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उनका ये कहना है कि यहाँ पे मस्जिद जाने के लिए भी जो है वो भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि पानी इस हद तक यहाँ पे गंदा गटर उबलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद हजरात जो हैं वो भी नापाक हो जाते हैं। जबकि आपको बताऊँ कि वासा की जानिब से कोई अभी तक यहाँ पे पानी की निकासी नहीं की। शुक्रिया शाहजेब शहजाद। तो दूसरी जानिब कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ तमाम सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। 2-2 फीट पानी खड़ा होने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल, सूरत हाल इसी तरह से कज़ाफ़ी के एरिया में मौजूद है और यहाँ पर पानी की सूरत हाल ये है कि रोड के ऊपर जो है कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी जो है यहाँ पर खड़ा है। निकासी आपका सिस्टम फिलहाल हमें यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, ना यहाँ पर कोई हमें हैवी मशीनरी नज़र आ रही है। जो रोड है तालाब का मंजर पेश कर रही है, यहाँ पर अच्छा खासा पानी खड़ा है। यहाँ पर हमें मुतअद्दिद जो है बाइक्स बंद नज़र आती हैं, गाड़ियाँ बंद नज़र आई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पानी की सूरत हाल इस तरह की निकासी आपके लिए कोई टीम मौजूद नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं की जा रही। मुख्तलिफ जगहों पर जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड बारिश हुई है, 30 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, उसकी वजह से जो है शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर बेशतर मकामात हैं जो कि तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम लोग भी इस वक्त हैं पानी के अंदर खड़े हैं और पानी की सूरत हाल भी इसी तरह से है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और निकासी आपके लिए फ़िलहाल मुतअद्दिद जगहों पर कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। वासा की टीमों का कहना तो है कि हिकमत अमली तैयार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द निकासी आपको मुमकिन बनाया जाए। लेकिन बेशतर जगहों पर अभी भी हमें वाटर पॉन्डिंग नज़र आती है और बेशतर मकामात पे इस तरह के मकामात है जहाँ पर राहगीरों को बहुत मुश्किल के सामने ट्रैफिक दबाव का शिकार देती है। इसकी वजह से हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इक़दाम करे और कोशिश किया जाए कि जल्द से जल्द इसको निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।